पंजाब दस्तावेज और भारत दस्तावेज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज आपको बताएंगे कनाडा और भारत के दरमियान शुरू हुए विवाद में क्या है पंजाब पुलिस कनेक्शन। यह भी बताएंगे कि कनाडा की तरफ से एक भारतीय दूत को निकालने के पीछे क्या कारण है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि कनाडा में हुए खालिस्तानियों के 2 कत्लों के मामले में कनाडा सरकार एक कत्ल को ज्यादा संजीदगी से क्यों ले रही है, जबकि कत्ल हुए दूसरे खालिस्तानी का जिक्र भी नहीं कर रही। इस पर भी नजर डालेंगे। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों पर कनाडा में दखल देने के इल्जाम सही हैं या फिर नहीं। यह भी पूछेंगे कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 सम्मेलन के दौरान हैंडल जिस तरीके से किया गया, क्या वो सही था या फिर गलत। सबसे पहले देखिए ये 2 ताजा वीडियोस। पहली वीडियो है कनाडा की एक लेडी स्पोक्स पर्सन की और दूसरी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। वो क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। Bonjour à tous. Hi everyone. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. अब जिस भारतीय दूत को निकालने की बात की जा रही है उसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पंजाब दस्तावेज और भारत दस्तावेज के माध्यम से देंगे। ऐसी जानकारी जो अब तक ना तो किसी नेशनल मीडिया ने और ना ही रीजनल मीडिया ने आप तक पहुंचाई है। स्क्रीन पर देखिए, यह है पंजाब कैडर के 1997 यानी कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार राय, जिनकी पहली तैनाती तरनतारण में बतौर एसएसपी 2006 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते की थी। 2007 सितंबर में इनका तबादला अमृतसर में हुआ। उसके बाद वो पहुंचे जलंधर, जहां उन्होंने करीब 1 साल नौकरी की। फिर पवन कुमार राय केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अमृतसर में प्रमुख बने। 3.5 साल के कार्यकाल के बाद वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही दिल्ली चले गए। हाल ही में पंजाब पुलिस ने उनको एडीजीपी के पद की तरक्की दी। उनके बैचमेट्स अरुणपाल सिंह,
नौनिहाल सिंह और राकेश जायसवाल सभी पंजाब में ही तैनात हैं और एडीजीपी बन चुके हैं। पवन कुमार राय के स्वभाव और काम करने के तरीके के बारे में आपको बताते हैं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिन्होंने पवन कुमार राय के साथ नौकरी की, उन्होंने बताया कि वे एक बेहद ईमानदार, वक्त के पाबंद और एकदम साधारण जीवन व्यतीत करने वाले अधिकारी हैं। तरनतारण में सभी हैरान हुआ करते थे जब वे सुबह 5 बजे के करीब उठकर बिना पुलिस सुरक्षा के गुरुघर की तरफ निकलते, गुरुघर में माथा टेकते और गुरुघर से वापस अकेले ही घर लौटते। उसके बाद ठीक सुबह 9 बजे दफ्तर में अपनी सीट पर वो हाजिर पाए जाते। आधा घंटा लंच ब्रेक के बाद शाम करीब 5 बजे तक वे लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं का समाधान करते और सरकारी फाइलों को निपटाते। वो भगवान से डरने वाले इंसान समझे जाते रहे हैं। अब बात करेंगे G20 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच हुई बातचीत के बारे में। नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के समक्ष सबसे पहले मुद्दा रखा कनाडा में सरगर्म खालिस्तानियों का, जो आए दिन भारतीय सरकार या भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन भी करते हैं और हमले भी करते हैं। कई मंदिरों को वेंडलाइज भी किया गया। हाल ही में सरी के एक गुरुघर के सामने 3 भारतीय दूतावास के अधिकारियों की तस्वीरें लगाकर उनको मारने का आह्वान किया। मोदी ने कनाडा की धरती से खालिस्तानियों द्वारा पंजाब में चलाई जा रही हिंसक घटनाओं का जिक्र किया। पंजाब में गैंगस्टर्स के साथ मिलकर नशा और हथियारों का काला कारोबार करने का जिक्र भी किया। कहा कि कनाडा की धरती पर भारतीय डायस्पोरा सुरक्षित महसूस नहीं करता, जो गलत बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हमारा कानून किसी को अपने विचार व्यक्त करने से, अपनी मांगे रखने से नहीं रोकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसियों द्वारा हरदीप निज्जर के कत्ल करवाए जाने की बात सामने आ रही है और भारतीय सरकार को सहयोग करना चाहिए क्योंकि हरदीप निज्जर कैनेडियन नागरिक था। भारत द्वारा कनाडा के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी हमें स्वीकार नहीं, ऐसा भी जस्टिन ट्रूडो ने कहा। बाद में भारत की ओर से जस्टिन ट्रूडो की इन सब बातों का खंडन किया गया। यह भी कहा गया कि हरदीप निज्जर एक आतंकवादी था और भारत की अखंडता को कनाडा की धरती से चुनौती दे रहा था। अब बात करते हैं हरदीप निज्जर और रिपुदमन मलिक के कत्ल की। हरदीप निज्जर का कत्ल 18 जून 2023 को सरी में हुआ। उसके करीब 8 महीने पहले रिपुदमन मलिक, जो कि कनिष्का मिडियर बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी रहा लेकिन बरी हो गया था, उसका कत्ल हुआ। कत्ल होने से कुछ देर पहले रिपुदमन मलिक भारत दौरे पर आया था और भारतीय सरकार के कुछ नुमाइंदों से उसने मुलाकात भी की थी। यह बात हरदीप निज्जर के खालिस्तानी गुट को कतई पसंद नहीं आई और वे मलिक को भारतीय एजेंट बताने लगे। इसके बाद खालिस्तानी समर्थक रिपुदमन मलिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ साहिब को मशीनरी के साथ उठाकर उस गुरुघर में ले आए जहां का प्रधान हरदीप निज्जर था। यह चर्चा आम थी कि रिपुदमन मलिक के कत्ल के पीछे निज्जर गुट का हाथ संभावित है, लेकिन कैनेडियन सरकार ने इस एंगल से मामले की जांच की ही नहीं और एक संदिग्ध गैर भारतीय को मलिक कत्ल में चार्ज किया। दूसरी ओर हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद खालिस्तानियों द्वारा एक प्रोपोगंडा किया गया कि निज्जर का कत्ल भारतीय एजेंसियों द्वारा करवाया गया, जिसका कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला। लेकिन इसको आधार बनाकर कनाडा सरकार ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। जैसे आपने इस खबर की शुरुआत में दिखाई वीडियो में कनाडा सरकार का पक्ष सुना कि अगर यह इल्जाम सही है कि भारतीय एजेंसियों ने निज्जर का कत्ल करवाया है तो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच शुरू हो चुकी है। अगर यह सच निकलता है तो कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास आनी और रिश्तों का प्रभावित होना संभव है। यहां आपको बताते चले कि अनकन्फर्म्ड इल्जामों के आधार पर भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि रिपुदमन मलिक के कत्ल के बाद चर्चा जिसमें निज्जर के खालिस्तानी गुट पर उंगली उठ रही थी,
उस पर कैनेडियन सरकार संजीदा नहीं लगती। इन अदर वर्ड्स, जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों के नैरेटिव को तो आंख मूंद कर मान रही है, पर जो नैरेटिव खालिस्तानियों के विरुद्ध जा रहा है उसको सिरे से नजरअंदाज करती नजर आ रही है। हमारे कैनेडियन सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकार रिपुदमन मलिक को एक एसेट मानने लगी थी। उसके कत्ल के बाद भारत को यह स्पष्ट हो गया था कि मलिक के कत्ल के पीछे निज्जर गुट का हाथ है। फलस्वरूप निज्जर का कत्ल कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। अगर कैनेडियन सरकार की बात माने तो इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले आईपीएस पवन कुमार राय थे, जिसकी वजह से अब पवन कुमार राय को कनाडा से एक्सपेल कर दिया गया है। कनाडा के विदेश मंत्री ने पवन कुमार राय को रॉ का अधिकारी बताया, जबकि वो भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिटी अफेयर्स के पद पर तैनात थे। पंजाब दस्तावेज और भारत दस्तावेज इस बात का धारणी है कि दोनों देशों के रिश्तों में मिठास का होना बेहद जरूरी है और मिठास होनी चाहिए। कनाडा की धरती से भारत को खंडित करने की कार्रवाइयों या साजिशों को रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उसको दायरे के अंदर ही रहना होगा। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में घर आए मेहमान को बेइज्जत करना सही नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने G20 सम्मेलन के दौरान कैनेडियन प्रधानमंत्री को बनता मान सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो नाराज हुए, उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। और जो कार्रवाई कनाडा ने अब G20 सम्मेलन के बाद की है वो रिएक्शन की श्रेणी में आएगी और जनाब अच्छी ये भी नहीं मानी जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।